Disappointing, embarrassing, and extremely let down by the performance of Indian cricket team in Melbourne continued throughout the Down Under series, and we as Indian fans have been let down by the team very much, and many of the people, many of the passionate cricket supporters have lost their cool, lost their calm, and to discuss all about it, all the basic thing about how much we are hurt today. Delvin joins in today from Influential Sports. Then we have Adi from Sports Potatoes, and my co-host Sushant joins today to discuss about this pathetic performance of Team India and another infamous collapse. Welcome, guys. Thank you, Hello, Vishnu. hello, hello. Hello. Hi So, Aditya, hi Delvin. Hi, I'm Sushant. sure the heart is pouring with not so good words, and there is so many emotions which wants to come out. So let's start with Delvin first. I think Yashbhai in his introduction put it very, very eloquently. Like it's disappointing, but I was not surprised because I was just having a conversation at the end of the second session where we went an entire session without losing a wicket. Proper test batting in that right. match throughout the course of the test was displayed by For a Jaiswal and Pant. change. For a change, yeah. Like there was proper resilience, there was proper restraint, there was proper application and a willingness to dedicate yourselves to spend as much time in the middle. And I was just having a conversation saying that these two have to be there when the second new ball is taken. And someone said that they'll to be only or 12 over nikal jayenge. So I said uh, they were like 12 ओवर बहुत कम हो जाएंगे कि सारे विकेट्स निकालने के लिए. आई वाज लाइक हमारा कोलैप्स जीन भी ऐसा है कि उनको 12 ओवर भी बहुत हो जाएगा कि सारे विकेट्स निकाल लेंगे. And as fate would have it, in a cruel twist of irony, we lost 7 wickets for 30 odd runs, I guess, and that is because it's very, very. There were genuine hopes of us going into Sydney 1-all and then probably sneak out a win at Sydney, but then getting out to a Travis Head long hop. Out of all the people, getting out to a Travis Head long hop to a plan that the entire stadium knew except for Rishabh Pant that this was what they were going to try, and yet you give away a wicket, and then afterwards it was just free fall. All Australia needed was that one small opening, and the moment they got in, we know how cold-blooded they are when they sense an opening, and they just pounced. From there on, it was just like a proper cauldron of intimidation, intense. They were just on you, like they did not give a single second of respite, and then very, very disappointing. Yeah, because after having that wicketless second session where you genuinely think that you got the hang of the ball, and to be honest, the pitch wasn't doing much. There were very good batting conditions. Sunny G himself said it. Mark Nicholas himself said it. There were a lot of people on comms who said it that the pitch was very, very easy to play on. But I think it had other plans. It was just disappointing overall. This is not something you get up at 4 o'clock and expect your team to do. Right. It's story short. It seems today the full stops are going to be very, very difficult and the flow is just going to continue. But you mentioned about a batting collapse, Delvin. And Aditya, like this is very new to Indian team, right? How many times have we collapsed in the last 7, 8 innings? Sorry, only what? Only 7 out of last 9 innings, Aditya? We have collapsed. I know. It's like you are being sarcastic there, but this is being a problem for Indian cricket team. Like Delvin said, that Australians saw this opportunity, saw this opening, and then after a while they are like uh, behind your wickets, right? And they got those wickets. That is the hunger which was missing from Indian cricket team, I believe. And it's all about, see, everyone is talented, but it's all about how hungry you are. I can see only Bumrah or these new guys like Jaiswal and Reddy were very, very, very hungry to prove themselves, to claim their spot. But apart from that, I don't think anyone else was that serious or taking it that serious. And I remember we had a discussion right before the series started. Uh, Yeah. I know, like I wanted to prove to be proven wrong, but I have predicted that time also. Looking at the body line of these people, these players during New Zealand series, they were too casual.
at that point of time. And it was followed on by your captain's comments that 12 साल में एक बार तो चलता है. And then you go to a tour like Australia, right? And there only that one person was not there, and you can see the performances. See, I am against all the shosha which Virat Kohli does, but it brings that energy in you. It brings Right. that fighting spirit in you. And as soon as we got Rohit Sharma back, that energy, that hunger was missing from the team. Maybe apart from Bumrah, of course, which I feel very sad about because he does not deserve this. And yeah, I mean, disappointed, truly disappointed. Nothing else I can say. So Yashaswa, another day, another heartbreak. We See- discussed this in many of our videos, like in the previous test matches, that sometimes you need to keep your ego aside, or else you will fail again and again and again. And I know there is a lot in you right now, and I will not ask you to stay any more positive today. Please take us through the match summary to start off with. Before I start ranting, there is one thing I recalled कि last जब हमारा podcast हुआ था ना सुशांत, I told you one thing. I am more of a realistic guy and you are an emotional guy. I knew इनकी औकात क्या है. मतलब मेरा अगर अनफिल्टर्ड वर्जन अगर इस पे चालू हो गया ना तो आज सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी. बट कैसा है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि ये गधे हैं एक नंबर के और इन्होंने सिर्फ दुख दिया है. मैं 5 बजे उठ के मतलब हर मैच में 5 बजे उठ रहा हूँ बेवकूफ ऐसे इनको देखने के लिए और ये चूते ऐसे बार बार 5 बजे आउट हो जाते 10 बॉल खेल के. ऐसे तो चलता नहीं है ना. मतलब हम लोग बेवकूफ बैठे हैं क्या? इतने सालों से सिर्फ एक चीज बोल रहे हैं कि भाई तुम थोड़ा टेम्परामेंट दिखाओ. कौन सा टेम्परामेंट यार इनका? आते हैं आउट हो जाते हैं वही चौथी पांचवी बॉल पे निक करके. अरे काय का किंग भाई. मतलब मैं आई रेवर हिम बट ये क्या सिचुएशन बना दी भाई इस बंदे ने. उसके बाद फिर आप बोल रहे हो कि यार रोहित शर्मा ऐसा, रोहित शर्मा कैप्टन. अरे अब फिर मतलब मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, शब्द निकलेंगे तो गंदे ही शब्द निकलेंगे. सिचुएशन इतनी पुअर है बिकॉज आई एम रियली हर्ट. यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे WTC फाइनल की. ये लोग तो वो पहले वो सड़ी सी न्यूजीलैंड से हार के आ गए. उसके बाद यहाँ पर भी हकते हुए मतलब पूरी सीरीज ऐसी निकाली. 150 रन पे, 200 रन पे, 180 रन पे ऑल आउट. 30 रन पे 7 विकेट गिरा दिए. मैं मेरी सिचुएशन बताता हूँ. When the second session ended, I watched the entire game. When the second session ended, I was pretty sure, pretty confident कि भाई यार ये टेस्ट तो बचा लिया. रो के ये टेस्ट भी बचा लिया. बिकॉज ऐसी सिचुएशन थी, पहले फॉलो ऑन बचा रहे हैं, पहले ये बचा रहे हैं, उसके बाद ये तो आउट ही होते जा रहे हैं. बट ऐसा लग रहा था 7 विकेट यार, 7 जिस हिसाब से पंत खेल रहा है भाई वो स्टूपिड वाला वो कुछ नहीं करेगा. आए भाई साहब ट्रेविस हेड तो मतलब बैठे ही थे और आके मतलब पेल दिए उसको और वो कैच भी हो गया. उसके बाद लगी लाइन. वो लाइन तो ऐसी लगती है ना मतलब बैठे ही रहते हैं लोग कि यार इनको शायद घूमना है ऑस्ट्रेलिया में और तो कुछ करने आए नहीं ये लोग. मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इट इज वेरी पैथेटिक, इट इज वेरी एम्बैरेसिंग टू सी दिस टाइप ऑफ टेस्ट मैच प्लेयर्स. इन लोगों ने पहले बहुत करा होगा बट फ्लैट ट्रैक पे करा है. रोहित शर्मा की इतनी आप बातें करते हो बट मेरे को तो जेन्युइनली जमता ही नहीं है. क्योंकि क्या सिचुएशन है ना कि भाई इसने परफॉर्म कहाँ करा है मेरे को बताओ ना. ओवरसीज में हम लोग जब बोलते हैं कि विराट कोहली, अरे विराट कोहली ने क्या करा है 5 साल में? कुछ नहीं करा है. सिर्फ वही है कि ही हैज बिकम सो सॉफ्ट कि वो जो एग्रेशन था ना वो दिल्ली वाला वो खत्म हो गया है. ये भाई साहब बैठे हुए लंदन में शांत बैठ के क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है. परिवार संभालो, रिटायरमेंट ले लो भाई. नहीं चाहिए इस टाइप का मतलब खैरात की हर मैच के बाद सिर्फ उनका स्टैट ले आएंगे. इस वाले भी पॉडकास्ट में कुछ मैं श्योर हूं आपने एक स्टैट बनाया हुआ कि इनका घटिया परफॉर्मेंस रहा है. बट कितनी बार हम लोग यही सेम चीज करें. इन्होंने एक इनिंग्स ऐसी नहीं खेली होगी जहां पर मैं बोलूं कि यार रोहित शर्मा ने अच्छा खेला, विराट कोहली ने अच्छा खेला. वो बुमराह बेचारा आखिरी में भीख मांग गया कि भाई बस कर दे यार, मेरे से अब नहीं हो पा रहा. कितने ओवर डालूं अकेला मैं. मतलब दिस इज सो स्टूपिड टू लिटरली सी अ पर्सन बेगिंग कि नहीं भाई आई नीड सम रिस्पेक्ट, व्हिच इज वेरी सैडनिंग. एग्रेशन सिराज दिखाता है, चलो अच्छा खेला, बट किस टाइप का एग्रेशन है यार ये? मतलब आपको एग्रेशन दिखाना है दिखाओ, बट मतलब यार कुछ स्पाइन तो रखो. वी आर लुकिंग लाइक स्पाइनलेस पीपल एंड इट इज नॉट गुड. गौतम गंभीर ने कुछ परफॉर्म नहीं किया. जब से आया सिर्फ दुखी दिया है. मेरा पेशेंस भी खो गया. मतलब मैं तो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मतलब आई फील सो, मतलब इतने ज्यादा गुस्से में हूं मैं. बट क्या बोलूं मैं, मतलब क्या स्टैट्स की बात करें हम. वो नीतीश रेड्डी अच्छा खेला, चलो ठीक है, लेट इट बी. मेरा एग्रेशन चलता रहेगा. आई रैंट इट ऑन ट्विटर, आई रैंट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप्स. बट दिस इज वेयर आई बिलीव यू माइट हैव फेल्ट कि हाँ मतलब मेरे को कितना बुरा लग रहा है. बिकॉज लेगेसी की बैंड बजा दी है. विराट कोहली ने तो बजा दी है. रोहित शर्मा का मेरे को पता नहीं, रोहित शर्मा के जो भी फैंस होंगे उनका वो ऑब्वियसली सुशांत बोलेंगे उसके बारे में.
But I am very hurt from the way Virat Kohli has got out in this series. Yeah. We pretty much have lost this series. लोगों को होप होगा सिडनी में जाके खेलेंगे, but I'm pretty sure सिडनी में भी जाके यही सिचुएशन होने वाली है. सिडनी को हमें जाके वो खुशियां नहीं देने वाला है. So let's not talk about all these things. I would like to know from you, because I want to know how a person who is so emotionally driven, who is so passionate and hopeful all the time, is going to react to such type of stupid loss. भाई वो दिस डिफीट है ना, वो लिटरली बोलते हैं ना, एक एक प्रकार से क्रश कर दिया है. मतलब एक इमोशनल फैक्टर पे ना एक ऐसा चकनाचूर हो गया है. बिकॉज आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आज सुबह ना मेरा दिमाग गाबा ही लेके चल रहा है. मतलब यार मुझे पता है कि गाबा वाज वन ऑफ थिंग, लेकिन मेरा दिमाग बोल रहा है यार गाबा में ना 324 चेस किए थे लास्ट दिन पे. तो आज हमारा व्हाट्सएप ग्रुप देखो, मैंने सुबह सुबह पहले के 10 मिनट में ही डाला है कि नहीं यार पहला सेशन है ना 2 के रन रेट से खेल दो, चलेगा, विकेट नहीं डालो. और अच्छा ही लग रहा था कि हाँ भाई, खुश हो रहा था. 10 ओवर हो गए, तभी रोहित शर्मा ने विकेट डाल दी. मैंने बोला यार ठीक है चलो केएल राहुल. बट भाई वो फिर से मैं खाली ये देखना चाहता हूँ ना कि पहला सेशन वो एक खेल लो यार, मतलब खेल लो. मतलब अभी जब डेल्विन बोल रहा था ना सेकंड सेशन में, जब जायसवाल ने और सॉरी यार अभी तो नाम भी ऐसे ना मुंह पे निकलने वाले नहीं है, अंदर से ऐसी हालत हो गई है. जायसवाल और पंत ने जब सेकंड सेशन खेल के निकाला ना आफ्टर दैट क्रेजी फर्स्ट सेशन, मैंने बोला यार अभी भी होप है. शायद ये लोग पहले 10-12 एटलीस्ट 5-6 ओवर में दे माइट ट्राई टू गो, बिकॉज 228 बॉल में 228 रन चाहिए थे व्हेन द थर्ड सेशन स्टार्टेड. तो मैंने बोला होप Exactly. बट वहीं से सब है ना, जब ऋषभ पंत आके विकेट डालता है. सो यार मैं तुम तीनों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, दिल तो टूट गया है. इट्स वेरी वेरी हर्ट राइट नाउ कि सिडनी टेस्ट मैच देखनी भी नहीं है यार, सोचना भी नहीं उसके बारे में. बट तुम तीनों से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये कौन है एक्चुअली? ये गौतम गंभीर है, ये रोहित शर्मा है? बिकॉज गौतम गंभीर ने स्टार्ट किया था श्रीलंका के T20 सीरीज से, जहां पे हमने उनको पूरा अच्छे से हरा दिया था. गौतम गंभीर ने आते ही बहुत ही एक बोल्ड कॉल लिया था कि हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी से ड्रॉप डाउन करके सूर्य कुमार को कैप्टन बनाया. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बोल्ड कॉल्स. उसने ये भी बोला कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली हैड ऑप्टेड आउट ऑफ दैट श्रीलंका सीरीज. उसने रिक्वेस्ट करके दोनों को खिलाई. उसके बाद वो हम लोग सीरीज हार गए. पहली बार श्रीलंका में सीरीज हारे हैं 14 साल के बाद. हम लोग वो सीरीज हार गए, चलो हमने वो ले लिया. उसके बाद हमने बांग्लादेश को हरा दिया, वो भूल जाते थोड़ा सा. न्यूजीलैंड के साथ हम लोग हारे. नाउ does Gautam Gambhir have the authority to drop either a Rohit Sharma or a Virat Kohli from the team? क्योंकि अगर वो नहीं ड्रॉप कर सकता है ना, तो यार हम लोग तो 2 डाउन से ही चल रहे हैं फिर. क्योंकि Exactly. यार ना कोई, मतलब ये तो ऐसे हो गया ना कि इतना ईगो आ गया है कि यार कौन सा बड़ा बॉलर है यार, मैं तो किसी को आके कभी भी खेल लूंगा, नेट प्रैक्टिस कर लूंगा और खेल लूंगा. मतलब बॉलर तो चूतिया ही बैठा है ना, उनको कुछ है ही नहीं. Right. और न्यूजीलैंड ने आके दी, तभी भी आदि ने बोला था कि ये बंदे का बहुत बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कैजुअली एटीट्यूड ले रहा है. बट यार हमने बोला था नहीं यार, फिर भी देखते हैं, चलो WTC साइड में रखते, एक होप देते. फिर आया हमारा पर्थ का पहला टेस्ट मैच और हमने ऐसे परफॉर्म किया कि भाई जवाब ही नहीं. मतलब ऐसा लगा ना कि हम लोग तो अभी 3-0, 4-0, 5-0 भी जीत जाएंगे. वहां रोहित शर्मा नहीं था और टीम अलग ही एटीट्यूड से खेल रही थी. देर वहां लगा कि कोई प्लान है. भाई वापस रोहित शर्मा आता है. अच्छा, ये नीतीश रेड्डी का डिसीजन जो था, ये गौतम गंभीर का था. वॉशिंगटन सुंदर का गौतम गंभीर का था. तो यार ये मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा और ये बैठने का क्योंकि आज मैंने प्रेजेंटेशन देखा ना, मुझे लगा रोहित शर्मा को पछतावा होगा, वो बोलेगा, शायद हिंट तो देगा कि मैं मानता हूं 5वें टेस्ट मैच में खेलेगा, बट हिंट तो देगा कुछ कि भाई चलो मैं करके जा रहा हूं. भाई तूने क्या किया है मेरे को पता नहीं. तूने सेकंड टेस्ट मैच में केएल राहुल को बोला तू अच्छा खेल रहा है भाई, तू अच्छा खेल, मैं 5 या 6वें नंबर पे बैटिंग करता हूं. थर्ड टेस्ट मैच चली गई. तूने ये टेस्ट मैच में आके गिल को बिठा दिया, उसका कॉन्फिडेंस खा गया तू कि भाई मतलब तेरे को बैठना पड़ेगा, मैं तेरे जगह पे खेल लूंगा करके. तूने केएल राहुल को भी हटा के तू टॉप पे आ गया. अच्छा 3 पे भी आ सकता था ना अगर तू सेल्फलेस था तो. भाई मुझे नहीं पता केएल राहुल को तूने, मतलब वो लियोन का कितना गंदा डेरोगेटरी स्टेटमेंट आया कि व्हाट रॉन्ग हैव यू डन टू बैट ऑन नंबर 3. एग्री यार वो लगती है यार, वो लगती, और वो किसको लगती है कि साला तुम परफॉर्मेंस जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसको कर रहे हो.
ये Exactly. ऑस्ट्रेलिया मीडिया लगी पड़ी है अभी जायसवाल की बजाने में, साला दोनों इनिंग का टॉप, सॉरी फर्स्ट इनिंग में 80, सेकंड इनिंग में 80 बजी है। तो यार ये पता नहीं है कि ये विराट कोहली और रोहित शर्मा की या रोहित शर्मा की कॉल्स है, बट कुछ आइडिया नहीं है यार कि क्या कर रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है ना कि कोई प्लानिंग है ही नहीं। मतलब यार यश, हंसोगे तुम, हमारा मैनेजमेंट जो है ना, उसने बहुत अच्छा डिसीजन लेके इंडिया ए टीम को भेजा था ऑस्ट्रेलिया में 1 महीने पहले, जहां पे Correct. प्रसिद्ध कृष्णा था, मुकेश कुमार था, और कौन था, हर्षित राणा नहीं था। ईश्वरन ईश्वरन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलर्स। मुकेश कुमार था, प्रसिद्ध कृष्णा था, तनुष ये कोटियन था। हाँ भाई, इनमें से तुमने इनको क्यों भेजा इंडिया ए में, जबकि किसी को भी रुका नहीं था, खिलाना ही नहीं था। सही बात अच्छा, तुमने हर्षित राणा को इंडिया न्यूजीलैंड में खिलाया नहीं, तो उसको इंडिया ए के साथ तो भेज देते। नहीं, वो भी नहीं भेजा। यहाँ आकाशदीप को भेज देते, उसको भी नहीं भेजा। अच्छा, पहले दिन टेस्ट मैच में तुमने न्यूजीलैंड में आकाशदीप को खिलाया और यहाँ पे आकाशदीप को ही ड्रॉप किया। तो यार मुझे कुछ प्लानिंग नहीं दिख रही है यार। जब हम लोग गाबा में लास्ट टाइम जीते थे ना, किसके साथ जीते थे यार? टी नटराजन था, नवदीप सैनी था, उमेश यादव था, सुंदर था, इन्होंने निकाले थे 20 विकेट यार। शार्दुल और सिराज भी थे। हाँ, शार्दुल और सिराज यार, ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। बुमराह इंजर्ड था, अश्विन इंजर्ड हो गया था। तो यार प्लेयर्स की तो बात करो ही मत, कौन से कैलिबर से खेल रहे हो। तो यार पता नहीं अभी ये क्या करने वाले, बट अभी जेन्युइनली आई एम टेलिंग यू ना, 5th टेस्ट मैच का तो मन ही नहीं है भाई देखने का, बिकॉज यही प्लेयर्स आई वांट टू सी समवन हु इज प्लेइंग विद एन इंटेंट कि भाई मैं इंडिया के लिए खेल रहा हूं, रादर देन जस्ट पुटिंग। जब सचिन तेंदुलकर, जब इंडिया खेला करती थी ना, सचिन तेंदुलकर अकेला था तो इंडिया का फ्लैग लगा के खेलता था। अभी हर एक प्लेयर इंडिया का फ्लैग लगा के खेल रहा है। अरे प्ले विद दैट इंटेंट। अगर ये फैमिली, अगर ये शो नहीं देखती ना, तो आज बहुत बहुत गंदी चीजें Exactly, that's the problem. मैं इसलिए अनफिल्टर्ड वर्जन मेरा निकाल नहीं रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड बहुत गंदा पेशेंस मैं होल्ड करके बैठा हूँ। देयर इज वन थिंग, सुशांत, आप जिन्होंने जितने नाम लिए ना, इंडिया, ये सारी चीजें जो हम लोग लास्ट टाइम गाबा में जीते, उसमें एक रीजन ये था, they had very limited opportunities, these players. Yep. और उनको परफॉर्म करना था, they wanted to prove themselves. Here we have superstars who are sitting and they don't want to prove anything because they know they have done everything. उनका PR एजेंसी इतना स्ट्रांग है, अभी कोई जाके वहां पर नेट्स में खेलने लग जाएगा और इनका हो जाएगा he is practicing very hard and all. So सब समझ में आता है, मतलब जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है। Delvin, I wanted to ask one question to you. What exactly has gone wrong? I mean, I'll go with go to Adi as well, but just one question to both of you. What exactly has gone wrong in this test or probably in the last 2 series? I think the biggest difference is the captaincy. Now let's take a look at our bowling in Australia's second innings. We've had them at 173 for 9. The lead is 278. I think that is something which is very very achievable. बहुत अचीवेबल टारगेट होता है अगर हमने उनके टेल को पैक कर दिया. At the same time, look at us when we were 100 and when we lost Jaiswal only. Like when we lost Jaiswal, practically the entire Australian 11 was right in front of Washi's nose, right in front of Akashdeep's nose, or Siraj's nose, or Jassie's nose while they were batting. And then you look at Lyon and Scott Boland batting. You don't have anyone in front of their eye line. Like there is just a nominal slip at the back, and that's about it. And they were just easily milking those runs. They were taking those leg byes, the overthrows. I think the captaincy has been the biggest difference between the two sides. And you can see like Rohit Sharma's body language is just not there. Okay, Yashasvi Jaiswal ne catches drop kar diye. But then you can't be so vocal about your frustrations. And especially with the way that Rohit showed the frustration in the 2 drop catches, the one where Manas was dropped and the one where Pat Cummins was dropped. I think that is 40 runs there itself. Manas went on to make 70 from 46 and Pat Cummins went on to make 41 from 22, I think. So that's 40 runs right there, which could have been avoided. And then there is this 60-run stand. So that's basically 100 runs taken away had things panned out differently. Right. And then again, we have, like Yashbhai, you said, we have 2 walking wickets. I think if a person is getting out the same way once or twice, it's understandable. Throughout the course of your last 5 years in your career, you're getting out the same way. Your average has dropped from 55 to 47 in those 5 years.
you were considered to be one of the pillars of Test cricket among the other three. We all know who the names are. Don't need to put out names out there. You were considered to be the torch bearer for Test cricket. You were known to love Test cricket with your heart and soul. Where is that dedication now? We have been, after every test, there has been a still or a video grab of Virat Kohli practicing in the nets. What are you practicing? What are you practicing? If you are practicing to get out the same way, then I can understand. But then you're showing us clips of practicing in the nets only to get dismissed in the exact same way. I don't buy that. Okay, you showed excellent restraint in the first innings. Get it. Right. But you got out the same way after playing almost 15 overs. You played 15 overs in the first innings. You played 86 balls. And getting out the exact same way is it just doesn't sit right for us as fans who and you looked assured. It was not like you were circumspect right from the off. You came out with a batting plan. You managed to fulfill it. आपने एक तो यशस्वी का now there is a lot of debate that who was responsible for the Jaiswal run out. Some of them said Jaiswal is responsible. Some are saying Kohli is responsible. I believe it was Kohli's fault because आप अगर रोल रिवर्स करो और कोहली ने ही वैसी शॉट मारी होती, कोहली झट से फराटे से भाग लिया होता. अगर रोल्स रिवर्स होते तो कोहली ऐसी सिंगल लेता ही है. आप देखो कोहली ऐसे सिंगल लेता है. And of course, you being such a veteran in Test cricket and you're ball watching, out of all the people, आपसे ball watching करना expected नहीं है. You know what? Yeah, sorry to cut you in between over here. But at the end of the day, I completely agree. See, some people will be Jaiswal biased over here. Some people will be Kohli biased. At the end of the day, just imagine वो रन आउट नहीं होता, अगर कॉट बिहाइंड होता तो उसने अभी हो गई मिस्टेक. आई एम श्योर जायसवाल और कोहली दोनों ने वो खत्म भी कर दिया है. ये पब्लिक उसको लेके ड्रैग करके चल रही है. हाँ, तो यार वो हो गया. आई कंप्लीटली एग्री विथ यू ओवर हियर. बट नाउ द चैलेंज इज द ब्लेम गेम इज गोइंग टू कंटिन्यू. और जब ये रोहित शर्मा के फैंस डालेंगे कोहली पे, कोहली के डालेंगे रोहित शर्मा पे, फिर दोनों के उठा के डालेंगे किसी यंगस्टर पे. बट दिस इज नॉट गोइंग टू एंड. I think there has to be some solution, and the solution can only be felt once we see some changes in the Indian batting lineup going ahead. I think Agarkar has huge decisions to make as chair of selectors. I think it is about time that Agarkar takes a leaf out of the ECB's book, where they personally called in Anderson and said, "Listen, आपका हो गया, आप बैठ जाओ. पीछे लाइन में काफी सारे नए बॉलर्स आ रहे हैं, हमें उनको चांस देना है." Very simple conversations were had with James Anderson, Johnny Bairstow, Ben Foakes. Their Test careers as England players are effectively over, all because there was prompt conversation from the board to the respective players that there is going to be a phase out, and you are not going to be part of this new cycle of players that are going to be there. The problem is that we don't do that with our senior players. We give them free rein to do whatever they wish to do. And this is not a 21st century problem. This has been a predominantly India problem throughout the course of our cricketing history from the 80s or 90s. Let's catch 83 as the vantage point for our cricketing history, where we let Kapil Paji play till the 92 World Cup, where Kapil Paji was arguably way past it. Sachin Paji played for so long, and then now it is continuing with these. I think tough conversations need to be had with Rohit and Virat. Either Sydney Test is the last test of both, because if either one of them play in the England series, it's going to have like a very detrimental effect, because we have so many good players. I think one player we are forgetting who was dropped for no apparent reason or no apparent mistake of his was Dhruv Jurel. He has the technique, the skill to play as a pure batter. He does not need to play as a wicketkeeper also. Even if you are putting all your wicket-keeping eggs in the punt basket, Jurel has quality to play as a frontline bat in that 11. He walks into that 11 with his eyes closed, and yet he was dropped for I don't know who came in. Then again, like Sushma, you said about Gill's confidence taking a hit after being dropped for this test in Melbourne. There are so many things, and it is muddled in such a way, that it is not easy to pinpoint who's at fault, because there are so many mistakes that are intertwined. Where if you pick out one mistake, there is going to be a litany of so many events leading to that particular mistake where things have gone wrong.
So all in all, a little bit of blame for everyone, but chiefly to answer Yashbai's question, I think captaincy has been the biggest point of difference between the two sides. The way and another biggest is that they have collapsed less and we have collapsed every single time, except that first innings at Perth where we literally dominated them from start to finish in the second innings. And Australians are not collapsed more than Bumrah ripping through their middle order. You cannot call any of their fall wickets a collapse. We have gifted wickets away. That's been the major point of difference. So, and lack of support. अब तो हम सबको पता ही है कि it's these people have taken I am believe only on Jesse Vai quite seriously, and every test it's the same. Jesse bowls. Jesse brings us back in the contest. The moment Jesse is taken out, these guys literally release the pressure on one side. Jesse Bhai is gonna get injured soon, and then Jesse Bhai is going to get all the trolling again as well. सिडनी बैठ जाना चाहिए. बैक स्टार्टअप बोल के सिडनी बैठ जाना चाहिए. इनको शर्म आनी चाहिए कि यार जस्सी ने इतना किया, मैं उससे हाथ कैसे मिलाऊं. ऐसे जाके खेलना चाहिए भाई. अगर कुछ नहीं तो उसके लिए खेल लो. बट शर्म क्यों आनी चाहिए डेल्विन? रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह से बहुत अच्छा है यार. जसप्रीत बुमराह ने 30 विकेट लिए और रोहित शर्मा ने 31 रन किए, तो ज्यादा किए ना भाई. यार आदित्य, व्हाट्स योर टेक भाई? व्हाट नीड्स टू इंप्रूव? नहीं सी, मेरा सबसे फर्स्ट यही पॉइंट है कि कैप्टनसी इज द इशू एंड दैट प्लेयर who is taking it lightly is the issue. क्योंकि अगर आप फर्स्ट टेस्ट ही उठा के देख लो, there is a stark difference between what we did in that test versus what we have done in the next 3, right? प्रॉब्लम ये है, मैंने हमारे ग्रुप में भी लिखा है कि सक्सेशन प्लानिंग क्या है आपकी. आप एज अ कोच, जैसे आप गंभीर की बात कर रहे हो, राइट? आप गंभीर को लेके आते हो, आपके पास रोहित शर्मा एज अ कैप्टन आ रहा है और आपके पास विराट कोहली है. Two of them who are legends of Indian cricket who are underperforming. ठीक है, अब आप बीच में you are throwing in couple of youngsters to the mix and expect them to bail you out. मतलब apart from Bumrah, you are expecting the youngsters to bail you out every single time. That is not going to happen. So यहाँ पे अगर मैं 99% blame रोहित शर्मा को दूं, उसकी कैप्टनसी को दूं, तो I will blame 1% to गौतम गंभीर also, 1% to मिस्टर आगरकर ऑल्सो, क्योंकि आपको वो टफ कॉल बहुत पहले लेना चाहिए था, अभी तक नहीं लिया है. एंड इट इज कंटिन्यूइंग एंड इट इज कंटिन्यूअसली इम्पैक्टिंग योर प्लेयर्स ऑल्सो. जैसे गिल की आपने बात करी, केएल राहुल का रीशफल होना आपने बात करी, ध्रुव जुरेल की आपने बात करी, हनुमा विहारी 31-32 ईयर की एज में ही इज कमेंटेटिंग. तो इट्स वेरी शेमफुल who have performed and who have to sit out. मैं यहां तक कहूंगा कि ठीक है, सरफराज माइट नॉट हैव द टेक्निक टू प्ले ऑन दीज पिचेस, बट आप हेड को देखो, आप उसको देख के कन्विंसिंगली कह नहीं सकते कि ही हैज दैट टेक्निक आल्सो. टेक्निक वर्ड कैन नॉट resonate with heads playing, right? So you have to take those tough calls. Ki give Pant a free arm. You have then Nitish Reddy also. You have Jaiswal also, who will play their national game. You give Sarfaraz Khan a chance in place of maybe Virat Kohli. Take tough decisions. Take tough calls. You have to take it. अभी T20 से आपने उनको संन्यास दिलवा दिया, ठीक है, अभी टेस्ट की बारी है. अभी अगर आप इसके बाद भी उनको कंटिन्यू करते हैं तो it is going to impact your fans, right? Indian cricket team fans, why are they going to watch your matches if you keep on doing the same mistakes again and again? So my first actionable item is remove Rohit Sharma from the captaincy, remove him from the team as well, remove Virat Kohli also if needed. See, immediate changes are required, immediate surgery is required. There is no going to be, it is not just a cut where you will put bandage on and be happy with it. So अगर आपको बुमराह दिख रहा है, and Bumrah did very well in his captaincy, right? He managed to decrease his workload and equally balance it out with other bowlers. ठीक है, बाकियों ने विकेट नहीं लिए, बट बाकियों ने इतना इजीली रन भी नहीं दिए, इतना इजीली गिव अप नहीं किए. You can see first test match की fielding setup and see now. Yeah. For Leon and Bolland, you are having people on boundary lines. Bolland जिसका बैट नीचे तक नहीं आता है, पैर तक भी नहीं पहुंचता है उसका बैट, यार, एक यॉर्कर एंड ही इज गॉन.
मतलब आप समझ रहे हो कि आप उसको इजी सिंगल्स दे रहे हो लेने के लिए। सो ये जो चीजें हैं ना, ठीक है WTC में नॉट बी इम्पोर्टेंट राइट, बट आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए आपको कुछ लोगों को तो आपको वहां पे कंसिस्टेंटली रखना पड़ेगा। KL राहुल की प्लेस रखनी पड़ेगी, आपको एक परफेक्ट प्लेस रखनी पड़ेगी अगर आप उसको सिलेक्ट कर रहे हो तो। अगर आप गिल को रख रहे हो तो गिल को कंटिन्यूस थोड़ा 5-10 मैचेस का रन देना पड़ेगा। ईश्वरन आपका साइड में बैठा हुआ है यार, वो गया इंडिया ए टूर में, ही वॉज सपोज टू रिप्लेस रोहित शर्मा एज अ ओपनर, वो गया, वो वहां पे वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, 28 साल का हो गया है, ही डज नॉट हैव मच करियर लेफ्ट राइट। तो आप कब ये प्लानिंग करोगे, व्हेन आर यू गोइंग टू प्लान? अभी तो BGT आई डोंट नो, मतलब मैंने वो प्रेडिक्ट किया था, आई डोंट फील गुड टू से दिस अगेन एंड अगेन कि हम लोग WTC नहीं पहुंचने वाले हैं, ये भी मैंने बोला था, बट मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि इन लोगों को थोड़ी शर्म आएगी। और आई डोंट नो, मतलब मैं तो नहीं देख रहा हूँ, कहीं हंसी टिटोली चल रही है, स्लिप में कैचेस छोड़ रहे हैं, बढ़िया गुस्सा हो रहा है रोहित शर्मा। यार तू एक रन तो बना दे, ठीक है, जितना गुस्सा तू दिखा रहा है फील्ड पे, तू 5 रन तो कन्विंसिंगली बना दे। व्हाट इज दैट? चल तेरा इंटेंट वाला गेम खेल ले, 40-45 रन क्विक मार के आउट हो जा, सही बट बात। वो तो कर, मतलब डू सेल्फलेस समथिंग। सेल्फलेस गेम, सेल्फलेस गेम। सेल्फ, ये वर्ड से ही नफरत हो गई है मुझे, सेल्फलेस। ये सेल्फलेस के चक्कर में Aditya, I'll like to take your take. I'll like to take your sentence ahead over here. मैंने recently कहीं पे ये देखा था कि if you give a bunch of lions to a monkey, they are going to show you the traits of a monkey. But if you Correct. give lion a bunch of monkeys, they are going to fight like a warrior. And that's the difference a leader make. I'll just highlight ना कि मेरे को genuinely ये problem लग रहा है ना, रोहित for sure टीम में तो है ही, but ये मेरे को ऊपर से भी लग रहा है यार कि अगर तुम कौन से क्रेडेंशियल्स पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गौतम गंभीर ने भी स्टार्ट किया, बट यार कौन से क्रेडेंशियल्स पे तुम इंडिया का तुम एक हेड कोच बना रहे हो, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है? अच्छा आप लोगों ने हेड कोच बना दिया, मॉर्ने मॉर्कल को लेके कितना झगड़ा हुआ था यार, जहीर खान वाज सपोज टू बी द बॉलिंग कोच, उसको झगड़ा करके उसने बोला कि नहीं मॉर्ने मॉर्कल ही चाहिए, मॉर्ने मॉर्कल। अरे उसने पहले PCB की पाकिस्तान टीम की वाट लगाई, अब आके क्या कर रहा है यार वो, मैं तो मेरे को लग रहा है ना पहले उसको राम राम जोड़ो भाई, कि भाई थैंक यू सो मच जा तू। मतलब यार एग्री, एक थिंक टैंक होती है ना, तुम कौन से एंगल से कर रहे हो, कौन से प्लानिंग से कर रहे हो, तो मेरे को तो वहीं पे लग रहा है कि यार तुम क्या मैनेजमेंट से सोच के ला रहे हो, तुम्हारा सोच क्या है, तुम किसी डायरेक्शन में जाना चाहते हो यार। आप और मैं, हम एक्सपर्ट नहीं है, वो लोग एक्सपर्ट है, बट व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ 15 टू विजिट अ कंट्री, तुम पहले क्या सिलेक्ट करते हो? तुम्हारी टॉप 11 सिलेक्ट करते हो, चलो तुमने तुम्हारी टॉप 11 सिलेक्ट कर दी, उसके बाद तुम कहां जा रहे हो? तुम लोग ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो, तो तुमको क्या चाहिए? तुमको बैकअप में 2 सीमर चाहिए, तो तुम टीम में 3 सीमर खिला रहे हो, तुमको 2 सीमर बैकअप में चाहिए, तो 5 सीमर तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुमको एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए, जो ध्रुव जुरेल के रूप में तुम्हारे पास बैकअप विकेट कीपर भी हो गया और तुम्हारे पास वो परफेक्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी हो गया। और उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए? ऐसे बैट्समैन जो टॉप 3 में खेल सके, तो दैट मेक्स योर टॉप 16। मतलब इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं ना। अभी तुम बोल रहे हो कि जो ये ईश्वरन फेल गया, ये सब गया, तुम अगर 11 में ही उनको शफल करोगे, अच्छा 5 वाला 1 पे चला जा, 1 वाला 3 पे चला जा, मतलब कुछ भी करोगे, कुछ भी शफल करोगे, तो ये बंदर वाली हरकत हो गई ना यार, कि एक झाड़ से दूसरे झाड़ पे जंप मार, दूसरे झाड़ से तीसरे झाड़ पे जंप मार। तो यार मेरे को लग रहा है कि ये मैनेजमेंट को भी बैठ के सोचना चाहिए कि व्हाट आर वी डूइंग, और हम कहाँ आगे जा रहे हैं। और शायद से ना हम लोग ने ना, ये जब से मेंटल कंडीशनिंग, मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आई अंडरस्टैंड कि व्हेन वी गो ऑन अ टूर हम लोग फैमिली को मिस करते हैं। मेरे हिसाब से फैमिली को बैन करना चाहिए यार टूर पे, फैमिली को जाना ही नहीं चाहिए। तुम बोल रहे हो कि यार मतलब भाई ये 5 दिन की टेस्ट मैच है ना, मतलब टेस्ट मैच करते हो, प्रैक्टिस करते हो। विराट कोहली ने किया था ना कि वी आर नॉट स्ट्रगलिंग, वी हैव अ हाउस टू लिव। तो भाई मतलब आजकल फोन पे बात करते हो, ये फैमिली के साथ, टीम के साथ ट्रैवल नहीं करना, फैमिली के साथ अलग ट्रैवल करना, अलग से रहना, फिर तुम ट्रिप पे गए और बच्चे संभालो। मतलब यार अगर बीवी तुम्हारे साथ है और न्यूबॉर्न बेबी है, तो भाई उसके पीछे तो बाप रात भर जागेगा और दूसरे दिन आके क्रिकेट खेलेगा भाई। मतलब तो भाई उस हिसाब से आई एम दिस इज नो कंपैरिजन। तो भाई सोल्जर की मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती रहेगी? वो तो फैमिली से 9-9 महीने 10-10 महीने दूर रहते हैं यार। वो लोग भी देश के लिए कर रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, यू आर प्लेइंग फॉर योर नेशन। तो वो है कहां यार? तुम लोगों को स्वीट्स चाहिए, तुम लोगों को कमरे चाहिए, तुम लोगों को बिजनेस क्लास फ्लाई करना है, तुम लोगों को घूमना है, सब मजे लेने, बट भाई खेलना नहीं है, खेलना नहीं है बस।
Yes, but this reminds me of that. This is the equivalent of that guy saying in Spanish about the players. You live in a mansion. अरे भाई मतलब मेरे को बता, इंडियन इंडियन टीम प्लेयर को क्या कमी है? और मैं आई एम ये पॉडकास्ट पे आई गो ऑन एंड से 100% इस भाई, लेकिन आई गो दिस एंड से यार यहाँ पे हमारी ये हालत है, वहां पे 1-1.5 साल पहले है ना, जय शाह ने ट्वीट किया था मैन और वुमन को इक्वल पे देने के लिए, स्मृति मंदाना हरमनप्रीत को सबने तारीफ की थी, उसके बाद देखो कितना कैजुअल लिया है यार, हर सीरीज हार रही है इंडियन वुमेन, अभी खाली वेस्ट इंडीज को हराया है ये लोगों ने यार, ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी खा के आई है यार ये लोग को, मतलब जैसा यहाँ रोहित शर्मा का हाल है, विराट कोहली का हाल है, केएल राहुल का हाल है, वैसे ही वहां पे जेमिमा रॉड्रिग्स, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, भाई ये लगे पड़े हुए और सेम एटीट्यूड कैरी कर रहे हैं यार, मतलब मेरे को पता नहीं है ना कि और अगर ये चेंज यार, बीसीसीआई तो कड़क पैसे बना रही है और प्लेयर्स भी बहुत छाप रहे हैं, तो यार उसके बीच में ये जब यंगस्टर आते हैं ना, जिनकी ये मोटिवेशनल स्टोरी होती है, जैसे नीतीश कुमार रेड्डी आया, यशस्वी जायसवाल है यार, इनकी स्टोरी बेच बेच के स्टार स्पोर्ट्स खाली व्यूअरशिप कमा रहा है और यार मतलब कोई बात नहीं कर यार, अभी तुम लोगों ने बात किया यहाँ पे कि ऋषभ पंत ने के विकेट डाला, हाउ डू वी नॉट नो कि ऋषभ पंत को बोला गया था पीछे के गो फॉर अ चेस करके नाउ, गाड़ी पहले गियर में चला रहा था सेकंड सेशन पे, अभी डायरेक्ट जाके 5वें गियर पे चला, ये तो ऋषभ पंत भी कबूल नहीं करेगा, ये तो वो भी नहीं कबूल करेगा, ये तो थिंक टैंक ने बोला जाके चेस करके, मतलब वो डायरेक्टली आके वो रिपोर्टर ने सवाल पूछा रोहित शर्मा को कि पंत के डिसमिसल को लेके आपको क्या लग रहा है, साला कमीना क्या बोल रहा है, कौन से इनिंग के बारे में पूछ रहे हो, फर्स्ट इनिंग के बारे में कि सेकंड इनिंग पे, मतलब वाह, मुझे भी बहुत 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 ज्यादा खटकी वो बात, क्योंकि उसने ऐसे बोला कि हम नहीं बोल सकते कि आप ऐसा खेलो, उसको खुद सोचना पड़ेगा कि वो कैसे खेल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड, अरे भाई उस हिसाब से ब्रदर फिर आप क्या कर रहे हो ऊपर अरे आप तो कुछ नहीं कर रहे हो भाई, मस्त एंजॉय कर रहे हो, मस्त पैकेज मिल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आप तो ऐसे ही लग रहा है भाई, अब तो ऐसे ही लग रहा है कि खेलना बिलना यार, यहाँ पे हम इमोशंस लगा के बैठे सुबह, जैसे यशस यार सुबह 5-5 बजे यार, यहाँ पे हम सब फुटबॉल फैंस है यार, रात को 2 बजे मैच फिनिश हुआ है, सही बात है यार घर पे लोग बोल रहे क्या कर रहे हो करके यार, ये समझते ही नहीं यार, इट इज स्टिल एन इमोशन ड्रिवन कंट्री, क्रिकेट स्टिल रन थ्रू आवर वेन्स, वी लव दिस गेम यार, लेकिन नहीं, धज्जियां उड़ानी है साला, हम ये यशस्वी आने से पहले मैं अदिति के साथ बात कर रहा था कि यार हम लोग सोचते चल यार नेक्स्ट इनिंग में आएगा बारी, नेक्स्ट इनिंग, साला नेक्स्ट इनिंग में तो जो ऐसा लग रहा है ना, जो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी धज्जियां उड़ेंगी यार। सो यही सेम सिचुएशन सुशांत मेरे साथ हुई कल, आई stopped watching the Liverpool game around 1 p.m. सारा post match presentation and everything I saw, I wrapped up around 1:15, उसके बाद अब क्या बॉडी क्लॉक ही ऐसी बन गई है कि यू गेट एट 5:45 और समथिंग, तो मैं 5:45 बजे उठ के बैठ गया, मेरे को पता था कि लोग भागेंगे, बट उम्मीद ही है, इट्स द होप दैट किल्स एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। रोहित शर्मा आया भाई, आउट हो गए, फिर वो कोहली के चक्कर में तो मेरा तो गुस्सा आ गया था कि भाई क्या बोलूं, तो मतलब मेरे को पता था दिस वाज गोइंग टू हैपन एंड स्टिल आई वाज रेडी, बिकॉज़ आपने कोहली बोला ना भाई, ये नया फैसिनेशन क्या है कि लंच से 1 और 2 और पहले ही ऐसे झटके देके जाने भाई। Nobody wants to stay at the crease, crazy. Correct. Anyway, a lot of things are to be discussed. एक क्वेश्चन सिर्फ है दिमाग में बिफोर वी रैप अप, रवि अश्विन को समझ में आ गया था ये चीज कि ये सब बेवकूफी हो रही है, ऐसा हो रहा है, इसी कारण छोड़ देते हैं ताकि Definitely. I think the moment he got dropped in Perth and he's seen the shit show that unleashed in Adelaide, he's like, every single day after his retirement, his decision looks smarter and smarter. And that is the worst thing. That is the worst thing you can say about this Indian side at the moment, that a retirement decision is being considered as a wise investment so that you are out and away from the circus that is going on inside. Because Ashwin definitely has a lot to say about the situation that is there inside. But बोल नहीं सकता है और बोलेगा भी नहीं, हमको पता भी नहीं होगा कि क्या हुआ है, but लेकिन there's something really deep that is going on and Ashwin knew it, and very very smart of him to announce the retirement mid-series. Genuinely very smart call. भाई थियरीज तो अभी हजारों और लाखों निकलेंगी, तो उसमें से एक थियरी मेरी भी ऐड कर दो। बट मुझे लग रहा है ना कि वो बंदा तो एज इट इज बहुत स्मार्ट है और बहुत इंटेलिजेंट है,
मेरे को लगता है ये प्री डिसाइडेड शायद इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज में था उसका कि मैं छोड़ दूंगा शायद, बट जिस तरह से हम लोग इंडिया न्यूजीलैंड में हारे वो फेयरवेल नहीं करना चाहता था। उसके बाद उसने पर टेस्ट मैच खेली, सॉरी एडिलेड टेस्ट मैच खेली, और वो थर्ड टेस्ट मैच के लिए ड्रॉप हो गया। अभी इसके बाद हमारी टेस्ट मैचेस होने वाली इंग्लैंड में। उसको पता चल गया कि भाई अगर मैं यहां से नहीं लेता तो फिर तो मेरा मतलब मेरे को मेरे जो है जो इमोशंस है वो कुछ मेरे को नहीं मिलने वाले हैं। तो भाई मैं अभी टाटा राम राम ठोकता हूं, बिकॉज एंड में इस टीम की बजने वाली है, तो मेरी तो ना बजे इनके साथ। तो एग्री। मेरे को लग रहा है अगर अगर इंडिया न्यूजीलैंड के साथ अच्छा होता ना शायद वो उधर बाय बाय, बिकॉज यार मेरे को लगता है कि अगर इंडियन क्रिकेटर हो तो इंडियन सॉइल पे वो बाय करने का हक हर एक इंडियन क्रिकेटर डिजर्व करता है। मैं ये नहीं बोलूंगा हर एक का सचिन तेंदुलकर की तरह अपने होम ग्राउंड पे होगा करके, बिकॉज नो वन इज एज ग्रेट एज हिम, बट यार अगर अपने देश में आके बंदा चाहता है कि वो रिटायर हो करके, यार धोनी उसी के लिए तो नहीं ले रहा ना रिटायरमेंट, उसको तो चेन्नई में ही चेन्नई को जिता के ही निकलना है। तो यार और कितनी बार तो जिताएगा, कितना जिताएगा? अरे पता नहीं, तो यार अभी मेरे को वही लग रहा है कि दैट वाज इन द माइंड कि अभी मैं आगे के टेस्ट मैचेस नहीं खेलूंगा, एंड आई एम आल्सो गेटिंग ओल्डर, तो यार यहाँ से बोल के निकल जाता हूँ, क्योंकि यार ये टीम का तो कुछ ये लग ही नहीं रहा है ना भाई। कोई भी आके किधर भी आके जुड़ रहा है, खेल रहा है, मतलब मेरे को तो यही लग रहा है यार। यशस्व आप हम कहीं ना कहीं सब लोग एक टीम चलाते हैं, वी नो वी आर नॉट एज ग्रेट, हमारे रिकॉर्ड्स इन प्लेयर्स की तरह एकदम माशाल्लाह नहीं है, लेकिन यार कहीं ना कहीं टीम को जोड़ के रखने का सिंपल फॉर्मूला है ना यार, कि यार हर एक को खेल के कॉन्फिडेंस दो, हर एक को बांध के रखो, एंड देयर हैज टू बी अ रिप्लेसमेंट फॉर अ राइट पोजीशन। तो रवि अश्विन का मेरे को तो यही लग रहा है भाई कि ये प्लान था, उसके दिमाग में प्लान था, उसने अपॉर्चुनिटी देखी और सीज कर दी। करेक्ट। एग्री। आपको क्या लगता है? आदि? 100%, 100% एग्री। मतलब ही इज सच अ स्मार्ट गाय, वो क्यों रुकेगा अपनी बेइज्जती करवाने के लिए, राइट? और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा स्मार्टनेस उससे विराट कोहली, शर्मा को भी ले लेना चाहिए। एंड बीसीसीआई, अजीत आगरकर, गौतम गंभीर थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। आई डोंट नो, मतलब आप कुछ भी डिसीजन लो, इट हैज टू बी बोल्ड। एंड लगे तो जायसवाल को कैप्टन बनाओ, आई डोंट माइंड, मतलब कुछ तो आपको भाई करना बुमराह है, पड़ेगा। बुमराह है, मेरे लिए तो कैप्टेंसी के लिए बुमराह अभी है भाई, नहीं नहीं, एटलीस्ट ऑफकोर्स दूसरा कैप्टन ग्रूम होते तक तो। ऑफकोर्स बुमराह बनाओ, बट बुमराह का अभी इतना ओवरलोड हो गया है, इसलिए मैं सोच रहा था कि कोई यंगस्टर बनाओ, क्योंकि बुमराह माइट नॉट प्ले 1 or 2 मैचेस इन द या 3 मैच सीरीज, 4 मैच सीरीज। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ तो एक प्लानिंग करो। मतलब यशस्वी जायसवाल तो मैंने चलो नाम ऐसे ही दे दिया, बट और कोई नाम मुझे समझा भी नहीं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। कुछ तो एक ऐसा प्लान बनाओ जहां पे आपका दिख के आए कि आप कुछ तो कर रहे हो, मतलब विद द डिसीजन मेकिंग यू आर हैविंग in terms of your chief selector, in terms of your coach। तो कुछ तो ऐसा आपको करना पड़ेगा to change this situation which is going worse every day, right? और जहां तक बात आपने दोनों ने कही, मैं तो मतलब आई डोंट वॉच क्रिकेट मैच लाइव इतना ज्यादा, मतलब सुबह उठ के आई ट्राई टू अवॉइड कि इतनी सुबह उठूं मैं। बट मैं जब उठा और मैंने देखा कि यार इन लोगों का स्टैंड अच्छा हो गया है, जायसवाल एंड पंत का, मैंने अपने ग्रुप में ही लिखा कि पंत आंसर कर रहा है सनी जी को आज। और जैसे ही ये लिखा, विद इन 5 minutes ही लॉस्ट हिज टेम्परामेंट, कूल, जो भी बोलो। आई टुक इट इन अ सनी जी वेरी फनी वापस वे। आंसर कर रहे हैं पंत को। आई टुक इट इन वेरी फनी वे कि आई जिंक्स्ड इट और समथिंग लाइक दैट। बट मुझे ये चीज समझ में ही नहीं आ रही कि इतना इजीली अगर मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ कि आप एज ए बैट्समैन कैसे हो, तो ट्राई टू इम्प्रूव दैट। मैं क्या, करेक्ट। कोई भी जैसे यश भाई बोले, आप बोले कि 5th 6th स्टंप पे बॉल आएगी और आप 5 साल से वैसे ही आउट हो रहे हो। एज अ ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की आप डिबेट में रहते हो, आप 3 साल से 4 साल से आप सिर्फ निक ही निक कर रहे हो, 4th स्टंप की बॉल, 5th स्टंप की बॉल, तो आप प्रिडिक्टेबल हो चुके हो हर एक के लिए। उन्होंने ट्रेविस हेड राइट। को लाया ही इसलिए था, ऋषभ पंत को आउट करने के लिए। एंड यू बीइंग सच अ मूर्ख इंसान जिसने 100 सवा 100 बॉल खेल ली है, इतना रसिस्ट किया है, उसने वहीं पे शॉट मारा। मतलब आप माइंडसेट देखो कि नो बडी वॉन्ट्स टू पे और पुट अ प्राइज ऑन देयर विकेट अपार्ट फ्रॉम मे बी जायसवाल, मे बी रेड्डी, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम दीज टू आई डोंट सी एनीवन इजी विकेट देते के जाते हैं इजीली, मतलब बहुत इजी है। तो ये थोड़ा सा एक चीज, काफी थोड़ा नहीं है, मतलब बहुत बड़ा है, बट काफी काम करना बाकी है यार इसके ऊपर। आई डोंट मीन टू बी रूड, बट ऐसे हम 90s वाला सिचुएशन वापस देखेंगे, ये मैंने कभी नहीं सोचा था विद बीसीसीआई बीइंग सो डोमिनेंट, राइट? आपको भी याद होगा, आप सब लोग उसी यस, यस। एरा के हो, राइट?
एक जाता था 10 के 10 जा रहे हैं साथ में, तो ये वापस आ चुका है, यही देखने को मिल रहा है। आप न्यूजीलैंड से घर पे हार रहे हो, आप श्रीलंका से ओडीआई हार रहे हो, आप ऑस्ट्रेलिया जाके वही पुराने दौर याद आ रहे हैं आपको, 2-1 3-1 जा रहा है आपका। देयर इज नो चेंज ना, वही दिन याद आ रहे Exactly. हैं, वही दिन आ गए हैं। सो या आई मीन क्या बोलने का और उसके अलावा। Sushant, it has been a very long discussion because ये तो कैसा है ना, एंडलेस डिस्कशन है, हम लोग हमारा इमोशंस बाहर निकालते रहेंगे, बट ये गधों को सीख नहीं मिलेगी। इनका क्या है कि शाम तक तो दिख जाएंगे फोटो कि हाँ वो नेट में आ गया, वो कहीं निकल गया फैमिली के करेक्ट। साथ, तो भाई इनका चलता 31 को ये सिडनी टावर ब्रिज पे हो गए न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए रहेगा। कुछ 100%। ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा डेफिनेटली। 31st इज इम्पोर्टेंट, फर्स्ट इज इम्पोर्टेंट, द टेस्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट, वो वाली बात है। सो it's the fans who are going to be hurt, it's the fans who are going to pay Yeah. the price, we are going to be sad, our families are getting impacted because of all this stupidity that we guys are doing. We're like mid-30s guys and we are struggling to get this thing. So it's us who is on the receiving end. इनका तो क्या है, चलेगा भाई, पैसे वैसे कमा लिए, पीआर है, ब्रांड्स है, एडवर्टीजमेंट्स है, कमर्शियल्स है, जो बोलो सब है, तो Correct. चलता ही रहेगा। it's very saddening to see legends falling like this. So Yeah. that's it from my side. I don't have much to say. बाकी तो Sushank will wrap up today. मैं सिर्फ एक लास्ट ऐड करना चाहूंगा। Yeah. मैंने लिखा था ग्रुप पे, हाँ, हमारे कि किसी ने इंटरनेट पे कहा है, वो मैंने ही लिखा था और मैंने ही कहा था कि हम लोग सुबह 4 बजे उठ के हमें इंडियन क्रिकेट टीम डिसअपॉइंट करती है, और मेरे से कुछ क्या बहुत से मिलियंस ऑफ फैंस जो कि 4 बजे तक जाग के यूनाइटेड से डिसअपॉइंट होते हैं। तो हमारे लिए कहीं भी रिस्पाइट नहीं है, राइट? आप लोग तो कम से कम 2 बजे सोते हो ये सोच के कि यू आर लीग लीडर्स, बट ठीक है, मतलब हमारा क्या। So yeah, I mean we can't take away our frustration anywhere. कहीं पे खुशी, कहीं पे there is nowhere you can find happiness in terms of sports teams which you follow, right? And not only you guys, because you guys are very much impacted with ICT's performance, जो कि दिख के भी आ रहा है, आज दिखा भी और दिखेगा भी, नेक्स्ट वीकेंड भी दिखेगा, क्योंकि I don't think 5th टेस्ट में ऐसा कुछ अलग होने वाला है। I don't think so. I'm not Yeah. confident. Sushank, your parting thoughts. I'm sure for the Indian cricket players, they are sad, they are disappointed, but they know that people will forget this because there is a T20 league coming on, there is a 50-over match coming on, there is a Champions Trophy coming on. But there are cricketing fans who love you for what you are, who love you for your intent. There are cricketing fans who are considering our cricket legends as legends, and they are trying to dedicate their careers to this only game. For the love of the game, for the intent of the game, please go out there in Sydney. I am not saying prove us all wrong because वो level अभी चला गया है, but go over there and just play. Because someone somewhere is इसने डिसाइड किया होगा ना कि मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, विराट कोहली को देख के, रोहित शर्मा को देख के, वो ये लेगा नहीं। वो क्या आएगा, वो इंटरनेट पे उनको डिफेंड करने के लिए आएगा, वो झगड़ा करने के लिए आएगा, और ये डिफेंड चीज बनती नहीं है बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्रिकेट को ही किल कर रहे हैं। तो आई एम सेइंग दैट फॉर द लव ऑफ द गेम, फॉर द लव ऑफ द सिटी, फॉर द लव ऑफ द नेशन, प्लीज गो आउट देयर and play with intent. Show that you care for this game. Show that you are a responsible citizen and you care for your country, because that's what we want to see. And if we get to see that, we'll be happy all over again. ये भूलने में टाइम नहीं लगेगा, बट खेलो और हमको भी देखने में मजा है, ऐसा करो। बिकॉज यश भाई, सिडनी में बेवकूफी की तरह हम फिर से 4:30 बजे उठेंगे और घर वालों से गाली खाएंगे, बिकॉज यार वो तो बसा हुआ ही है ना, ये जानते ही है कि हम प्यार करने ही वाले इनको। बट यार आई जस्ट होप कि उनको थोड़ी सी फिल्म आए ना कि यार अपना ईगो साइड में रखो, थोड़ी शर्म कर लो कि देश के लिए ये लास्ट टूर होगा तुम्हारा, तो ऐसे परफॉर्म करो कि हमारे चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल डाल सको। राइट, वो लास्ट टेस्ट मैच है आपका, तो प्लीज अच्छे से खेल के जाओ, क्योंकि इसके बाद हम लोगों को लगता नहीं कि आपको देख पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि जो आपकी लास्ट मेमोरी हो हमारी अच्छी मेमोरी हो। थैंक यू फॉर वाचिंग। Thank you. Thanks guys. Thank you.